بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سندھ سے تشریف لائے۔ آج امام ربانی مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کی حوالے سے ہونے والے اس پروگرام میں آپ مدت بعد تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیوزات مجددیہ کے فروغ میں ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محقق عصر ماہر مجددیات جناب پروفیسر محمد اقبال مجددی ابھی کتابوں کے تعارف اور کتابوں کی اہمیت کے حوالے سے ذکر فرما رہے تھے۔ یہاں ان کتابوں کے پبلشر پروگریسو بکس کا شکریہ ادا کرنا بھی لازم ہے، جنہوں نے کتاب دشمنی کے دور میں کتاب دوستی کے رجحان کو پیدا کرنے کے لیے اپنی تمام تر کاوشیں صرف کی ہیں۔ اقبال مجددی صاحب کی کتابیں نایاب تھیں، کامیاب تھیں اور ملتی نہیں تھیں۔ انہوں نے وہ ساری کی ساری کتابیں اکٹھی کر کے اور ایک دلچسپ اہتمام یہ کیا ہے کہ ایک مستقل کمپوزر اقبال مجددی صاحب کے ساتھ لگا دیا ہے، جو انہی کے پاس رہتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ کے ان کی کتابوں کی کمپوزنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب دوستی کے فروغ کے لیے جناب چودھری غلام رسول صاحب، جواد صاحب اور شہزاد صاحب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ حاضرین ذی وقار، ہمارے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہونے والے مختلف پروگرام جو حضرت صوفی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں بھی ہوتے تھے، ایک نمایاں نام مفسر قرآن، ممتاز سیرت نگار پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی کا تھا۔ برصغیر میں عربی نعت کے حوالے سے انہوں نے جو لکھا، جو تحقیق پیش کی، رہتی دنیا تک لوگ اس موضوع پہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے تحقیق کی راہوں کو آگے بڑھائیں گے۔ بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ برصغیر میں نعت، تنقید نعت، تحقیق نعت کا جو شعور استاد گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی نے پیدا کیا، آج نعت کے حوالے سے جو ہو رہا ہے وہی اس کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی اور آج نعت اور شعور نعت کے حوالے سے جو ہو رہا ہے اس کے بانی یقیناً استاد گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی ہیں۔ شکوہ آج کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شاگرد نہیں رہے جو استاد کے علمی کام کو اور استاد کی فکر کو آگے بڑھاتے تھے، لیکن استاد گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی کی رائے یہ تھی کہ آج بھی اگر استاد بن جائے تو شاگرد موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک یونیورسٹی، ایک کالج اور ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے کام کیا، لیکن ان کے جنازے میں دور حاضر کے مشائخ بھی تھے، دور حاضر کے سیاستدان بھی تھے، اہل علم بھی تھے، طالب علم بھی تھے، اور وہ سارے کے سارے یہ احساس دلا رہے تھے، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر اسحاق قریشی کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے تھی۔ یہ وہ بنیادی طور پہ علمی دنیا میں کرنے کا کام یہ ہے۔ وہ کہتے تھے، ڈاکٹر اسحاق قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اگر آج بھی ہم استاد بن جائیں تو شاگرد موجود ہیں۔ لیکن انہوں نے کیسے شاگرد بنائے، کس طرح بنائے، میں اس کی ایک مثال، آج ہمارے ہاں
तनकीद के नाम पे या तनकीदी शऊर पैदा करने के नाम पे हौसला अफजाई का रवाज ख़त्म हो गया है। घरेलू मामलात हों, बाज़ार के मामलात हों, इल्मी मामलात हों, वो तनकीदी शऊर पैदा करने के नाम पे हम तनकीसी और तहकीरी रवैये इख्तियार करते हैं। ये तर्ज़ अमल उनकी हयात मुबारका में ना था, बल्कि उनके एक शागिर्द कहते हैं कि अरबी ज़ुबान व अदब के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी, तो वो शागिर्द कहते हैं मैंने मकाला पढ़ा। मकाला पढ़ने के बाद अरबी ज़ुबान के एक नामवर उस्ताद डॉक्टर तुफैल हाशमी डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी साहब से कहने लगे कि आपका शागिर्द आपसे 2 कदम आगे निकल गया है। तो वो शागिर्द सोचता है कि अब ना जाने क्या तासुरात और क्या तबसरा आएगा, लेकिन डॉक्टर इसहाक कुरैशी ने अपने शागिर्द के बारे में जिसको ये कहा गया था कि ये 2 कदम आगे निकल गया है, फौरन डॉक्टर इसहाक कुरैशी साहब फरमाने लगे कि 2 कदम नहीं 4 कदम आगे निकल गया है। ये हौसला अफजाई छोटों को बड़ा बनाती है। तनकीसी और तनकीदी रवैये इंसान को, छोटों को बड़ा बनाने से रोक देते हैं। यही कमाल था उनका कि उन्होंने बड़े बड़े लोग, आज आप पाकिस्तान की जामियात में किसी से भी अरबी और अलूम इस्लामिया के आदमी से पूछ लें, वो आपको बताएंगे कि हमारा डॉक्टर इसहाक कुरैशी साहब से कैसा और किस तरह का ताल्लुक था। यहाँ मैं कुछ तासुरात उनके सीनियर्स, उनके मुआसरीन, उनके हवाले से एक एक 2-2 जुमले पेश करना चाहता हूँ, और उसके बाद उन्होंने हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र के हवाले से क्या कहा, वो चंद इक़्तिबासात। इफ्तिखार चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया पे काम करने वाला एक बड़ा नाम है। वो कहते हैं कि वो बैक वक्त यानी डॉक्टर इसहाक कुरैशी एक कामयाब उस्ताद, नामवर मुसन्निफ, उम्दा मकाला निगार, साहबे तर्ज खतीब और मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं। एक क्लास फेलो उनके बारे में कहते हैं कि ज़माना तालिब इल्मी से ही मैंने उनको हद दर्जा मेहनती, ज़हीन और लायक पाया। उस ज़माने में डॉक्टर इसहाक कुरैशी साहब ने MA 1957 में किया था। तो वो कहते हैं उस ज़माने में दरसी कुतब तकरीबन नायाब थीं, वो किताबों को नकल कर लेते थे। डॉक्टर इसहाक कुरैशी साहब दरसी किताबें मिलती नहीं थी तो वो उनको हाथ से लिख लेते। और गुलाम हैदर चिश्ती कहते हैं मेरे जैसे कम हिम्मत और नाकारा इंसान उनके हाथ की नकल की हुई किताबों और कापियों से इस्तिफादा करते। यही बात डॉक्टर खुर्शीदुल हसन रिजवी जो नामवर शायर हैं और शोबा अरबी के उस्ताद हैं उनकी है। और फिर गुलाम हैदर चिश्ती उनके हवाले से एक शेर नकल करते हैं कि इस जर्रा को रहती है वुसत की हवस हर दम, इस जर्रा को रहती है वुसत की हवस हर दम, ये जर्रा नहीं शायद सिमटा हुआ सहरा है। डॉक्टर ज़हूर अहमद अजहर जो उनके PhD के निगरान भी थे, वो कहते हैं कि सबसे अच्छी बात डॉक्टर इसहाक कुरैशी में यह है कि वो अपनी जिंदगी के बहुत से लम्हात मुस्तार को पायदारी का रंग देने में अच्छी तरह कामयाब हुए हैं, इसलिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र के हवाले से एक बुनियादी और असूली चीज यह है कि इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की दावत क्या थी। और उस्ताद ग्रामी कदर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी ने उस दावत को अपने अल्फाज और अपने जुमलों में बयान किया। हजरत इमाम रब्बानी के हवाले से एक उनका कंट्रीब्यूशन ये कॉन्फ्रेंस है, जब भी किबला सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह इसको मुनक्किद करवाते, मौज़ूआत और मौज़ूआत के हवाले से दीगर तफसीलात जो थीं वो डॉक्टर इसहाक कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर तय होती थीं। और उसके बाद सूफी साहब के बाद भी ये सिलसिला जो
कॉन्फ्रेंस के हवाले से था, इल्मी मकालात के हवाले से था, वो डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी इंतहाई शफ़क़त और मोहब्बत से जनाब नाज़म बशीर साहब ये उनकी खिदमत में हाज़िर होते, फ़ोन करते या दीगर तरीक़ों से। ये एक कॉन्फ्रेंस उनके हवाले से, उनकी रहनुमाई के हवाले से यकीनन सदका जारिया है सूफ़ी साहब की ज़ाहरी ज़िंदगी से लेके आज तक। उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे और मुख्तलिफ़ मकामात पे डॉक्टर इसहाक कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की अरबी निगारशात और इमाम रब्बानी की फ़िक्र के हवाले से जो काम किया है वो मकातीब और इमाम रब्बानी के रसाइल का बहुत खूबसूरत इख्तसार भी है, और फ़िक्र इमाम रब्बानी की जो रूह है उसको हज़रत डॉक्टर इसहाक कुरैशी ने अपने अल्फाज में बयान किया है। हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने सजदा ताज़ीमी से इनकार किया और इस पे मकतूबात में बादशाहों के जो उलमा उस दौर के थे उनका फतवों का जिक्र भी किया, रुखसत और अजीमत का जिक्र भी किया। इस पस मंज़र को बयान करते हुए डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मैं समझता हूँ कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने इतनी बसीरत का सबूत दिया कि आने वाली नस्लें याद करती रहेंगी। मुसलमान हुकूमत थी, मुखालफ थे आप, झुकना नहीं चाहते थे, शरीयत का किसी फतवे पर बादशाह की रजामंदी की खातर तरमीम नहीं चाहते थे, और कहते भी थे कि तसव्वुफ का दावा करने वालों शरीयत पर अमल करो, बादशाह की खुशनुदी देखकर तरमीम ना करो। यह सबक दिया था कि मुझे देख लो कि बुलाया गया था लेकिन वहां भी मुजद्दिद बनकर गया था, दरबारी बनकर नहीं गया था। मैं साथ साथ रहा था लेकिन अपना मिशन मैंने बरकरार रखा था, मैं किसी मसलहत का शिकार नहीं हुआ था। आज अहले सुन्नत के हवाले से हमने जो मुख्तलिफ अनाओं के बुत बनाए हुए हैं, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का जिक्र करते हुए हज़रत डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आज कौन है जो अपनी ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ की मुखालफत सुन सके। अहले सुन्नत में हर रोज़ नए नए फितने निकल रहे हैं, हर रोज़ नई बातें आ रही हैं। एक किताब उधर से आती है और किताब आने से दूसरी किताब वजाहत में नहीं आती, रद्द अमल में आती है, और इतने शदीद जुमले कहे जाते हैं जैसे गैर से कहे जा रहे हों। तो क्या हम मुजद्दिदी मसलक को इख्तियार करेंगे? क्या हम अपनों को अपना समझते हुए गुफ्तगू करेंगे या दुत्कार देंगे? ये लफ्ज़ हज़रत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के पस मंज़र के हवाले से वो लिख रहे हैं कि क्या हम अपनों को अपना समझते हुए गुफ्तगू करेंगे या दुत्कार देंगे। ये आज के सूफिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। हम कहते थे छोटी उम्र में, सुनते थे कि उलमा झगड़ते हैं, सूफी प्यार देते हैं। सूफिया के यहाँ तो प्यार ही प्यार होता है, लेकिन हैरत हुई देखकर खानका से टकरा रही है। ये क्या है? ये मुजद्दिद अल-फ़सानी की तालीमात पर अमल हो रहा है? ये हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए। सूफिया का तर्ज अमल हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के फिक्र में क्या होना चाहिए, एक सूफी खानका को क्या करना चाहिए। डॉक्टर इसहाक कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अपनी मसनदों के तमक्कुन को छोड़ें और शरीयत मुताहरा पर अमल करने के लिए अपनी गद्दी को मरकज बनाएं। ये गद्दियां इसलिए नहीं हैं, ये हमारे मरकज नहीं हैं, ये निशाने मंजिल हैं जो मदीना मुनव्वरा दिखाते हैं। ये दरबार, ये शेख और ये मशाइख वो कहते हैं ये मंजिल नहीं है हमारी, ये तो मंजिल दिखाने के लिए राह थी, और मंजिल क्या थी? मदीना मुनव्वरा। डॉक्टर इसहाक कुरैशी लिखते हैं, जिस गद्दी से मदीना नजर नहीं आता वो गद्दी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये तो निशाने मंजिल है, मरकज वो मदीना मुनव्वरा है। इस मरकज से वो नजर नहीं आए तो यूं समझ लीजिए कि बात अपनी जात के फायदे के लिए है। जो शेख और जो गद्दी मदीना मुनव्वरा न दिखा सके वो गद्दी अपनी जात के फायदे के लिए है। और फिर लिखते हैं, ये निशान है मेरे दोस्तों जो हमें राह बताते हैं, ये रहनुमा है
जो हाथ पकड़कर मदीना ले जाते हैं, इन हाथों की कदर कीजिए। मुजद्दद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह सबको उधर का रुख दिखा रहे हैं। यह कारनामा था इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का। उन हालात में वही मरकज है, वही निजात है और वही कामयाबी का जरिया है। आइए आज भी उसी पर अमल करें। फिर आज तहकीक के नाम पे तशकीक पैदा करने का दौर है। आज हम हर उठने वाला कहता है कि मैंने ये तहकीक कर दी, ये साबित कर दिया, ये साबित कर दिया। हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र की रोशनी में डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो कहते हैं आप देखें हजरत मुजद्दद अल-फैसानी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफा के आगे झुके हुए हैं। हजरत मुजद्दद अल-फैसानी बहुत बड़ी शख्सियत, लेकिन इमाम अबू हनीफा के आगे झुके हुए हैं। यहां तक लिख गए हैं, यानी हजरत इमाम रब्बानी ने यहां तक लिखा कि मुझे शख्सी तौर पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी मोहब्बत है। कई चीजें मुझे उनकी पसंद आई, लेकिन क्या करूं कि इमाम अबू हनीफा सामने खड़े हो जाते हैं तो मुझे यूं मालूम होता है कि वो समंदर हैं और ये सब नाले हैं। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की ये फिक्र कि नई तहकीकात और नए नजरियात पैदा करने की बजाय इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ जाइए। आपके दौर में सूफिया अपने अपने मकामात की जंग लड़ रहे हैं, यहां तक कि मकाम सहाबियत और मकाम नबूवत से आगे जाने के दावे हो रहे हैं। हजरत इमाम रब्बानी लिखते हैं सहाबी का मकाम कितने से कितना छोटा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा वली भी उनके मकाम को नहीं पहुंच सकता। उन्होंने चेहरा रसूल को देखा है, आपने लिखा है वली खा अवैस करनी ही क्यों ना हो। सूफी का काम चिल्ले करवाना नहीं है, सूफी का काम अकीदों की सफाई है, तरबियत आमाल है। आमाल को मुंजबित करके अकीदतों को साफ करे, यही सूफी का काम होता है और वो काम इमाम रब्बानी ने कर दिखाया। आखिरी इक्तिबास जो इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के इत्तिबाए शरीयत सहाबा से मोहब्बत के हवाले से है। डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की खूबी यह थी कि वो कुरानी आयात से मफाहीम इस अंदाज से बयान करते थे कि इंसान समझता था कि ये नया असलूब, नया मनहज और नया तरीका है। वजह यह थी कि वो मुफस्सरीन के अकवाल को नकल करने की बजाय सारे मुफस्सरीन के अकवाल की रूह और खुलासे को, जो कुरानी आयात के सियाको सबाक के ज्यादा करीब होता, अपने अल्फाज में बयान कर देते थे। और आपने उनके अल्फाज सुने हैं, उनमें कितनी सलासत, रवानी, खूबसूरती और इबलाग है। डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कुरान मजीद में है फ़इन्ना का बी आयूनिना, ये आयत का टुकड़ा सूरह अत्तूर 48 नंबर आयत है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी नजरों में हैं। यह आयत नकल करने के बाद और बयान करने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने सोचा कि चलते फिरते होंगे नजरों में होंगे, उठते बैठते होंगे तो नजर में होंगे, अब तो कब्र अनवर में चले गए तो अब रब की नजर में कौन है। कुरान की आयत तो कह रही है कि या रसूल आप हमारी नजरों में हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो अब नजरों में होने का क्या मफहूम है। वो लिखते हैं तो इसी बात पर यकीन आया कि आज भी परवरदिगार अपने रसूल को तलाश कर रहा है। जिस वजूद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलकियां देख लेता है, अल्लाह को वही प्यारा लगता है। वजूद मोतबर नहीं, वजूद का वो हिस्सा मोतबर है। ये इंसान का वजूद मोतबर नहीं है। वो कहते हैं वजूद का वो हिस्सा मोतबर है जिस हिस्से में इत्तिबाए रसूल चली जाए, वही अल्लाह को पसंद है। आइए मुजद्दद अल-फैसानी के इस कौल पर अमल करें कि अपने आप को रसूल के आगे झुका दें, सहाबा के खिदमत गुजार बन जाएं। सूफी कितना भी बड़ा हो जाए सहाबी नहीं बन सकता, नबी तो बड़ी दूर की बात है। फरमाया वली बड़े से बड़ा हो जाए,
छोटे से छोटे सहाबी जैसा नहीं हो सकता, खा अवैस करनी ही क्यों ना हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक नहीं देखा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि इस चेहरा रसूल की कदर और मंजिलत जहन में रहे। एक ताबी ने हजरत अमर बिन आस से पूछा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा था। कहा, तुम्हें क्या खबर, हम कैसे बैठते थे रसूल की बारगाह में, हम सर झुका के बैठते थे। हदीस में मौजूद है, सहाबा इस तरह बैठते जिस तरह परिंदे सरों पर बैठे हुए होते। कहा देखा नहीं, कहा देखा। अब्दुल्ला बिन हजरत इब्ने अब्दुल बर कहते हैं, नकल की है हदीस, कि जब भी उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नजर पड़ी, वो मुझे कुरान का वर्क नजर आया। सहाबी ने कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पढ़ा था, हमने कागज पर पढ़ा है, फर्क बड़ा है। ये वो चंद इक्तबासात हैं जो फिक्र इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह को समझाने के लिए हजरत उस्ताद ग्रामी कदर मुफस्सिर कुरान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किए। ये कॉन्फ्रेंस भी यकीनन उनका सदका जारिया है, इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनके किए गए काम और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक क्लिप चल रहा था, मैं उसका आखिर में जुमला एक अर्ज करके डॉक्टर इसहाक कुरैशी की फिक्र किस तरह रची बसी थी, डॉक्टर इमाम रब्बानी की फिक्र डॉक्टर इसहाक कुरैशी की रूह में किस तरह रची बसी थी, ये सामने एक इक्तिबास हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से नकल किया गया है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत की एक ही वजह है कि वो ज़ाते ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है। हजरत डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हस्सान बिन साबित बड़े शायर नहीं थे, और यह बात उन्होंने कहा, मैं दावे से कहता हूं, हस्सान बिन साबित बड़े शायर नहीं थे। अरब की एक शायरा थी खनसा, मुकाबला हुआ था शायरी से, ये उससे हार गए थे। लेकिन अगली बात काबिल गौर है, कहते शायर बड़े नहीं थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े बड़े हो गए। यही कमाल है, यही इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मुजद्दद अल फैसानी रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र है। यही इमाम रब्बानी का पैगाम था कि आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता हो जाओ। उस्ताद ग्रामी कदर ने हजरत इमाम रब्बानी की इसी फिक्र को सारी उम्र इसकी शमा फरोजा करते रहे। अल्लाह करीम उन्हें कब्र में भी इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के फ्यूजात से मालामाल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन।